वो शुरू किया था लॉज ऑफ मोशन ना, वो कंटिन्यू करते हैं. I was discussing momentum with you. There's a mass which has initial velocity u, displays on a frictionless surface, and you apply force in the direction of velocity. As a result, after some time, velocity would increase. It has become v, and time taken is delta t. तो as such, initial momentum कितना है इसका? m into u. Final momentum is m into v. चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, which is m v minus mu. So न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट लिखो एक बार. न्यूटन सेकंड लॉ. according to according to Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, rate of change of momentum, rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. Rate of change of momentum is directly proportional to the force applied, and change in momentum change in momentum takes place change in momentum takes place in the direction of force. Change in momentum takes place in the direction of force. So that is Newton's second law of motion. तुमने मेरे को पेपर शेयर नहीं किया नंदिनी? सर मैं वही कर रही थी बट पेपर मुझे मिला नहीं तो मैंने हाँ, जस्ट तो पहले ही बोल देते, पेपर मैंने फेंक दिया है. सर मैंने नहीं रखा हुआ था बैग में तो है नहीं तुमने कहा मिला मुझे तुमने कहा था ना पड़ा हुआ है कहीं पे, तो वो शायद डस्टबिन बैग में पड़ा हुआ होगा. पेपर की फेंका मैंने रखा बैग पे। हाँ, तो किसी से लेके दो मुझे, ठीक है? मेरे को पता लगना चाहिए क्या है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, applied force in a body is directly proportional to rate of change of momentum. उल्टा भी लिख सकते हो. And the change in momentum takes place in the direction of force applied. तो as such हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, force is directly proportional to rate of change of momentum, and when you hurt out the sign of proportionality you bring in a constant k, and this k is a constant which is basically equal to 1. The force is equal to rate of change of momentum. If you want, you can write in the form of differentiation also, dp by dt. Differentiation of momentum with respect to time. Force applied on a body is directly proportional to rate of change of momentum, and change takes place in the direction of force applied. नंदिनी, लिख लिया तुमने ये स्टेटमेंट? न्यूटन तो सेकंड ये लॉ का. वाला हाँ, फोर्स applied on a body is directly proportional to the rate of change of momentum, and change takes place in the direction of force applied. उसी चीज को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज 1, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो गया. अब वहां से यू कैन रिप्लेस डेल्टा पी. डेल्टा पी इज एम वी माइनस एम यू बाई डेल्टा टी.
तो फोर्सेस m कॉमन ले लो, v माइनस यू बाई डेल्टा टी. What is v minus u? V minus u would be change in velocity. So delta v by delta t. What is delta v by delta t? Acceleration. Acceleration. So this is the formula we'll be using. So this is another way of writing Newton's second law. F is equal to mass into acceleration. Force applied always equals to product of mass into acceleration produced. चाहो तो लिख लो ये भी. According to Newton's second law, according to Newton's second law, force applied on a body, force applied on a body equals to product of mass and acceleration produced. F is always equal to mass into acceleration. अब since force and acceleration both are vector quantities, और किसी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है कई सारे फोर्सेस लगे हों. Suppose one force is acting like this, another force is acting like this, yet another force is acting like this, and so on. कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? वी फाइंड समेशन ऑफ फोर्सेस in one direction, suppose along x-axis, equal to mass into acceleration produced along x-axis. Summation of forces along y-axis equal to mass into acceleration produced along y-axis. Z-axis numeric generally आएगा नहीं, but there could be motion in 2 dimension like this. So this would be a working formula because force is a vector quantity. तो हमें अगर नेट फोर्स निकालना है तो हमें उसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा. अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएंगे, ऑपोजिट हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. अगर किसी एंगल पे तो उनका हमें कंपोनेंट लेना होगा, है ना. एंड वी कैन फाइंड द नेट फोर्स एंड हेंस वी कैन आल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा हमेशा? नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बाय द मास. एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? नेट फोर्स बाय द मास. और अगर नेट फोर्स जीरो का मतलब उस केस में उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा. इनफैक्ट जो न्यूटन सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ. न्यूटन सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ भी डेराइव कर सकते हैं. ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है. दैट एक्सप्लेन दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ एंड हेंस डेराइव फर्स्ट लॉ फ्रॉम द सेकंड लॉ. लिखो क्वेश्चन. Derive Newton's first law of motion from Newton's second law of motion. Derive Newton's first law of motion from Newton's second law of motion. कैसे करोगे सोचो. So we know that Newton's second law क्या है? F is equal to mass into acceleration. If there is no external force acting on a body, then क्या होगा? Acceleration zero हो जाएगा. Mass into acceleration will be zero. Mass तो zero हो नहीं सकता. Therefore, acceleration would be zero. That is, body is at rest or in uniform motion.
या तो बॉडी रेस्ट पर है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, एंड विच वाज नथिंग बट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नंदिनी? The momentum equals to mass into velocity. हाँ, So P equals to mv. क्या? P इक्वल टू, mv. ये क्या था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? लास्ट क्लास का रिवाइज नहीं किया तुमने? हाँ कि वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी unless हम्म। an external force is applied. हाँ, a body remains in the state of rest or uniform motion until unless we apply an external force। मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी रेस्ट पे होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ डेराइव कर लिया। दिस इज वर्थ 2 मार्क क्वेश्चन, छोटा सा। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस यू कम अक्रॉस, we'll come across 2 types of forces. One is action at a distance type. Like we know that Earth is attracting every object towards its center. अगर कोई भी मास m है तो उसको अर्थ अपनी तरफ एक्सेलरेशन g से अट्रैक्ट करती है, एंड दिस इज नथिंग बट gravitational force. So when two bodies are there, two masses are there, there'll be attractive force between them, irrespective of whether they're in contact or not. तो दो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है फिर भी उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो दिस इज एक्शन, दिस इज बेसिकली एक्शन एट डिस्टेंस टाइप ऑफ फोर्स। तो अगर दो मासेस हैं, इन इवन दे आर नॉट इन कांटेक्ट, दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर विद दिस फोर्स व्हिच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्शन एट अ डिस्टेंस। मतलब ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट, स्टिल द फोर्सेस आर एक्टिंग बिटवीन देम। ठीक है। दूसरा और कौन सा हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन एट डिस्टेंस। अगर दो चार्जेस फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, तुम 12th क्लास में पढ़ोगे ये, स्टिल दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर, अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। फॉर्मूला इज नॉट नीडेड बट स्टिल आई कैन गिव द फॉर्मूला। 12th क्लास का पहला चैप्टर है ये, द फोर्स। Similarly, magnetic force also is action at a distance. So these forces are action at a distance type of forces. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से हमारा काम चल जाएगा। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को शो करना होगा, वी ऑलवेज ड्रॉ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी डाउनवर्ड। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा उस पर विल अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स mg विच विल बी डाउन, वर्टिकली डाउनवर्ड। Then the other forces which are contact forces, they come into play only when two objects are in contact। जैसे कि सपोज तुम्हारे हाथ पे कोई वेट रख दिया मैंने, 2 kg ले लेते हैं। सो सिंस द ऑब्जेक्ट इज इन योर हैंड, यू फील द फोर्स इज एक्टिव इन योर हैंड, राइट? सो दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। हो क्या रहा है? दिस मास इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन योर हैंड। तो फोर्स ऑन द हैंड बाय द मास, FHM। हाथ पे वेट रखा हुआ है तो फोर्स ऑन द हैंड बाय द मास, सो ये कॉन्टैक्ट फोर्स। द मोमेंट मास को तुमने हटा दिया, फोर्स लगेगा नहीं। ठीक है। सो अगर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे तभी ये फोर्स लगेगा। अगर सपोज किसी टेबल पे मैंने वो 2 kg मास रख दिया तो फिर क्या होगा? जो फोर्स तुम्हारे हाथ पे लगा हुआ था वही फोर्स अब टेबल के ऊपर लगेगा, राइट? फोर्स ऑन द टेबल बाय द मास। तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर कोई रफ सरफेस है, इट्स नॉट ए स्मूथ सरफेस, and you make an object move with some velocity, so we see that after some time
वो जो बॉडी है, सपोज हमने उसको 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दी, आफ्टर सम टाइम दिस मास विल बी एट रेस्ट, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। से इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस दिस सिचुएशन। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज, फ्रिक्शन yes, फोर्स। because the invisible force is acting in the opposite direction, and this force is called friction force. Friction force always acts in the direction of opposite to motion, and it is there only when the two objects are in contact. फ्रिक्शन फोर्स तभी होगा जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे। इसीलिए जो आजकल ट्रेन्स होती हैं, सुपर फास्ट ट्रेन जो होती हैं, मैगलेव भी कहा जाता है उनको, तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रेन होती है, इट इज नॉट इन कांटेक्ट विद द ट्रैक, दिस इज अ गैप बिटवीन द टू। मैग्नेट्स को यूज करके उनको रिपेल करते हैं, सो देयर इज एयर इन बिटवीन, तो एयर फ्रिक्शन तो बहुत कम होता है। सो दैट इज व्हाई द स्पीड कुड गो एज हाई एज 500 किलोमीटर पर आवर, मैगलेव ट्रेन्स। सो दे वर्क ऑन जीरो फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो ए कॉन्टैक्ट फोर्स। इस मास को अगर मैं किसी रोप से सस्पेंड कर दूं तो क्या होगा? जो फोर्स हमारे हाथ पे लग रहा था वो फोर्स अब इस रोप पे लगेगा, तो दैट फोर्स विल बी टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन फोर्स इज ऑल्सो ए कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर रोप को हैंग किया हुआ है, उसमें कोई मास ही तुमने नहीं सस्पेंड किया, तो फोर्स पर ही लगेगा। सो टेंशन फोर्स इन ए स्ट्रिंग, force on the your hand, or friction force, all these are contact forces। ठीक है? फोर्स कभी भी नेचर में सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है। सपोज यू अप्लाई फोर्स ऑन द वॉल, ये वॉल है, फोर्स ऑन द वॉल बाय द मैन। अगर तुमने वॉल पे फोर्स लगा दो क्या होगा? दिफ्शा, वॉल पे फोर्स लगा दो, दिफ्शा बोल रही वॉल गिर जाएगी। हाँ दिफ्शा, वॉल गिर गई। तो वॉल क्या करे, यू विल ऑल्सो फील कि तुम्हारे हाथ पे भी फोर्स लग रहा है ना। When you push the wall, you'll feel as if the wall is applying force on the man by the wall. अगर एक मास को मैंने यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस पे रख दिया, अर्थ पे रख दिया मान लो, तो मास पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन द मास बाय द अर्थ। एट द सेम टाइम देयर विल बी फोर्स ऑन द अर्थ बाय द मास। मास उसी फोर्स से अर्थ को अटैक करेगा। कौन सा फोर्स बड़ा होगा नंदिनी? मास पे ज्यादा फोर्स लगेगा, अर्थ पे ज्यादा लगेगा? मास पे। दोनों फोर्स इक्वल होंगे। वो द फोर्स आर इक्वल। सी द फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यस, G m/r² हो गया ना, सेम फोर्स। ये दोनों फोर्सेस सेम है, लेकिन मास हमेशा नीचे गिरता है। कभी ऐसा हुआ तुमने पेन को ऐसे किया, अर्थ ऊपर आ गई? अब हमेशा पेन ही नीचे गिरता है। बिकॉज उसका रीजन ये है कि मास ऑफ द अर्थ बहुत ज्यादा है। तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। अर्थ का एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय द मास ऑफ द अर्थ, विच इज 6 × 10⁻24 kg। एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन इसी पेन की जगह अगर सन होता है, तो सन का मास तो बहुत ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? अर्थ हैज टू मूव टुवर्ड्स द सन। लेकिन अगर अर्थ सन की तरफ मूव करना शुरू कर देगी तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। सो अर्थ प्ले स्मार्ट, उस फोर्स को इट कन्वर्ट्स इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स। एज ए रिजल्ट अर्थ स्टार्ट रोटेटिंग। यूनिवर्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, वो तभी पॉसिबल होगा जब वो हैवियर ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट करे। द मोमेंट अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, तो क्या होगा? जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का, वो उसको अंदर ले लेगा। सो दिस ग्रेविटेशनल पुल बाय द सन इज ह्यूज बिकॉज मास ऑफ सन तो बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से अर्थ रोटेट कर रही है। सिमिलरली मून, मून अगर स्टॉप कर दे रोटेट करना, तो वो अर्थ में आ जाएगा।
but that force it converts into centripetal force by rotating. So every object in the universe, if it exists independently, वो तभी पॉसिबल है वो किसी हेवियर ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमे. ठीक है, ये होता है. तो दोनों फोर्सेस इक्वल थे. यहाँ भी ये दोनों फोर्स इक्वल थे. अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की. लिखो स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. मोशन 1D का टेस्ट कब दो रहे तुम लोग? कमिंग फ्राइडे या कमिंग वेडनेसडे? फ्राइडे. फ्राइडे। ठीक है. नंदिनी तुम तो दे चुकी हो बाय डिफॉल्ट. तुम्हारे टेस्ट मार्क्स आ गए? तो मैं आजकल गई नहीं थी, मैं देखा नहीं। और आजकल गए नहीं, लेकिन किसी दोस्त ने तो बता ही दिया हो तुम्हें. दोस्त बता देते हैं. नहीं सर, नहीं बताया। तुम्हारे दोस्त नहीं है? सर अरे ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अपने बता दिए, मेरे नहीं बताया। अच्छा. बहुत. उसके कितने हैं दोस्त के? सर मैथ्स के बता दिए उसने, फिजिक्स के नहीं बताए। अरे मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ अभी. हम्म, तुम्हें मैथ्स के भी नहीं पता, फिजिक्स के भी नहीं पता? हम्म, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखो. अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's third law of motion, to every action force, to every action force, there is equal and opposite reaction force. To every action force, there is equal and opposite reaction force, and action and reaction, and action and reaction act on two different bodies. Action and reaction act on two different bodies. ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे यहां पे जब हमने हैंड से वॉल को पुश किया था, द फोर्स ऑन द वॉल बाय द मैन, दिस इज फोर्स ऑन द वॉल बाय मैन. ये फोर्स वॉल पे लग रहा था. ये वाला फोर्स एफ एम डब्ल्यू क्या है? दिस इज फोर्स ऑन द मैन बाय द वॉल. तो जितनी जोर से तुम वॉल पे फोर्स लगाए उतनी ही जोर से वो तुम्हारे पे फोर्स लगाएगा वॉल. दे ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑल्सो. मतलब वेक्टर वाइज अगर देखोगे तो एफ डब्ल्यू एम वुड बी माइनस एफ एम डब्ल्यू. किसी के ने तुमको तुमने किसी को चाटा मारा, तुम्हारे हाथ ने उसके गाल पे चाटा मारा, फोर्स लगा दिया, तो तुम्हारे हाथ पे भी उसके गाल ने फोर्स लगाया. तो वह तो बैलेंस हो गया ना, बराबर हो गया. लेकिन रिएक्शन डिफरेंट आता है. ठीक है. वैसे देखा जाए फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो सेम है. कोई गड़बड़ नहीं हुई, बराबर हो गया, बैलेंस हो गया. सो देयर इज ऑलवेज, मतलब फोर्स कभी सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता. जैसे यहाँ मान लो मैंने एक टेबल पे मास को रख दिया, तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्रेविटेशन। हम्म. weak मास. gravity मास पे देख तो mg लग रहा है. और and normal reaction ऊपर लगे। कौन लगा है रिएक्शन? जो नीचे वाला ब्लॉक है वो छोटे वाले ब्लॉक के नीचे ऊपर। वाला टेबल है सब वो. ठीक है, नीचे टेबल रखी हुई, टेबल पे हमने, तो शी सेइंग कि टेबल पे फोर्स लगा रहा है, मैंने उसको नॉर्मल रिएक्शन ले लिया. तो नाउ सिंस मास मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन इसका जीरो है ना? एक्सेलरेशन मास का जीरो है. तो वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन. देयर इज नो मोशन इन द वाई डायरेक्शन, तो फोर्सेस बैलेंस हो जाने चाहिए. एन शुड बी इक्वल टू एम जी, है ना? सो कैन आई से दैट एन और एम जी एक्शन रिएक्शन पेयर है? एन नॉर्मल रिएक्शन है,
जो कि मास पे लग रहा है. mg is gravitational force. They are equal, they are opposite. Are they action reaction pair? आंसर सोच समझ के बताओ, यस और नो. काव्या. So I'm getting kind of confused because table भी तो नीचे लगाता है अच्छा, force वापस डेफिनेशन पढ़ो. न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ की डेफिनेशन पढ़ो, क्या है. with reaction force as an equal and opposite reaction. मतलब उतना तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. दे आर इक्वल एंड Yeah, ऑपोजिट. और लास्ट पॉइंट पढ़ो, क्या है. an हम्म. action and reaction act on different bodies. यहाँ तो सेम बॉडी पे लग रहे हैं. दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर. ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी. ठीक है. अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी क्लैरिटी के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, FBD. तो उसको समझने के लिए लेट्स ट्राई टू फिगर आउट फ्यू पॉइंट्स. जैसे कि हाँ, हाँ अभी देखो तुम खुद ही बता पाओगे, मैं तुम्हें एक बार सारे फोर्सेस बता देता हूँ. नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, इट्स ए कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स. जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखोगे, ठीक है, तो वो जो सरफेस है वो इस पे normal reaction लगाएगा, which will be perpendicular to the contact surface. So what is normal reaction force? Force acting on a body perpendicular to the contact surface. तो ये normal reaction क्या है? This is a normal reaction by the surface on the mass. So normal reaction or force on the block by ग्राउंड ले लो या सरफेस ले लो, जो भी है. ठीक है. अब इस मास पे ग्राउंड ने या सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया. तो मैंने कहा था कभी भी फोर्स सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता. तो ये मास मानेगा थोड़ी. मास क्या करेगा, इट विल अप्लाई सेम रिएक्शन फोर्स ऑन द ग्राउंड. तो ये जो दूसरा एंड मैंने ड्रॉ किया है, वही ये क्या है, ये बेसिकली है रिएक्शन फोर्स ऑन द ग्राउंड by the block or the mass. So these two are action reaction pair, because एक नॉर्मल रिएक्शन मास पे लग रहा है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड पे लग रहा है. दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दिव्या, कुछ कंफ्यूजन है. जब हमने पहले वाला ब्लॉक लिया था हम्म. तो उसका वेट भी तो टेबल पे लग रहा था और वो नॉर्मल। अलग चीज है, देखो मैं बताता हूँ. ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg है. दे कांट बी एक्शन रिएक्शन पेयर इवन दो दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट. दे आर एक्टिंग ऑन सेम बॉडी. इस नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन फोर्स कौन सा होगा, जब मैं टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा. ये एन क्या है, इस टेबल ने इस मास पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया. ये मास इसको छोड़ेगा नहीं, इस पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगाएगा. तो ये एन और ये एन एक्शन रिएक्शन पेयर है. सर नीचे हाँ, वाले n की वैल्यू mg तो वो इक्वल हो सकती है, होगी. वो तो है इक्वल, उसमें कोई शक तो नहीं. पर जो इक्वल होने से, एमजी तो किसी इक्वल और होने चीज से की। एक मतलब, इक्वल होने से एक मतलब ये नहीं वो एक रिएक्शन फोर्स हो गया. अब इस क्वेश्चन ये थी, ये mg जो है वो क्या, कौन सा फोर्स है. दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ. ठीक है, बात समझ में आ रही है. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ. अर्थ उसको पुल कर रहा है mg से, टेबल पुल नहीं कर रहा है उसको mg से, अर्थ ने पुल किया है. तो फिर इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा, ये मास इसको छोड़ेगा नहीं, बोलेगा तुमने मेरे को किया, मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ mg से.
ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। हाँ, एक्सेलेरेशन, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ही नहीं होगा तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा? फोर्स होता है m×a। अर्थ ने उसको ए से अट्रैक्ट किया, जी से अट्रैक्ट किया, तभी तो फोर्स लगा। क्या ये बॉडी थोड़ी लगे तो अर्थ लगा रही है? कोई भी, जैसे ये पेन है, ये पेन नीचे क्यों जा रहा है? बिकॉज अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है mg के बराबर। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द अर्थ ऑन द मास। इसको मैं इसके मास से डिवाइड करूंगा तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अर्थ पे भी ये मास ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अगर इस फोर्स को मैं अर्थ के मास से डिवाइड करूंगा तो मुझे अर्थ का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अर्थ का एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? mg डिवाइड बाय कैपिटल M, विच इज ऑलमोस्ट जीरो। अर्थ इसलिए ऊपर थोड़ी एक्सलेट करेगी। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन अगर वो इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, इतना इनफ नहीं है। दे शुड बी एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये mg, no doubt, as long as this mass is not falling n equal to mg है, but it won't doesn't mean that they are action reaction pair. Action reaction pair always act on two different bodies. और कोई डाउट देखो इसमें? तो n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन देयर सेम बॉडी। तो नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ गया? तो जब ये डायग्राम बना लेना, जब भी ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होंगे, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के नॉर्मल एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। वो दोनों बॉडीज पे लगेगा जो कांटेक्ट में है। ग्राउंड पे है तो ग्राउंड पे लगेगा, मास है तो मास पे भी लगेगा। डायग्राम बना लिया? एक और चीज देखो, अगर सपोज कोई रिंग है इस तरह से, ठीक है, उसको सरफेस ग्राउंड पे रखा हुआ है, यहाँ पे कोई मास हमने रख दिया, तो ये रिंग इस मास पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी और ये मास इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। मतलब जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन नेचर। क्या होता है? बिकॉज हर मटेरियल, हर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है, तो जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। दैट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। mg हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, क्लियर हो गया? नेक्स्ट फोर्स इज टेंशन फोर्स। अगर कोई रोप है, उस रोप को मैंने सस्पेंड, एक मास कनेक्ट कर दिया, तो रोप लूज होगी या टाइट हो जाएगी? ये स्ट्रिंग मैंने ले ली मासलेस, ठीक है। मासलेस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इसका मास नेग्लिजिबल है। दिस स्ट्रिंग इज इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मास को सस्पेंड करने के बाद ही 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। इन इलास्टिक एंड मासलेस। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसके कंपैरिजन में इसका मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। सो द मोमेंट यू कनेक्ट ए मास, स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट हो जाएगी, ठीक है। क्यों टाइट हो जाएगी? बिकॉज ये मास इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। क्यों पुल कर रहा है? बिकॉज अर्थ इसको पुल कर रही है ना। अगर अर्थ नहीं होता, अगर अर्थ नहीं होती, मानो जैसे कि तुमने अभी देखा होगा स्पेस में, ये मास सस्पेंड हो जाता है, एयर में कहीं भी घूमता, फिर ये स्ट्रिंग टाइट नहीं होती उस केस में। अभी ग्रेविटी फोर्स इस पे लग रहा है तो ये टाइट हो गई बिल्कुल। तो दिल बी थ्रू आउट टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रोप। तो पॉइंट नंबर वन इज दिस: if a rope is massless and one piece, tension force will be the same throughout the rope. लिख लो, if a rope is massless and one piece, then tension force in the string or the rope, tension force in the string or the rope will be the same everywhere. तो हर जगह रोप पे सेम टेंशन फोर्स लगेगा।
टेंशन फोर्स को नॉर्मली टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी टी लगेगा, यहाँ भी टी लगेगा, बीच में कहीं देखो तब भी टी लगेगा, एवरीवेयर टेंशन फोर्स विल बी द सेम. पॉइंट नंबर 2, टेंशन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज शोन अवे फ्रॉम द बॉडी. लिख लो, टेंशन फोर्स ऑन अ बॉडी is always shown away from it. Tension force in a body is always shown away from it. तो जब भी टेंशन फोर्स हमें दिखाना होगा, ऑब्जेक्ट से अवे दिखाओगे. अब जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पे टेंशन फोर्स दिखाना है इस मास पे, तो एरो ऊपर लगाऊंगा या नीचे की तरफ लगाऊंगा? यस, परफेक्ट, पर अवे फ्रॉम इट. अगर मुझे यहाँ पे टेंशन फोर्स दिखाना है, किधर लगेगा? नीचे. यस, बिकॉज अवे फ्रॉम द बॉडी. जहाँ पे उसको कांटेक्ट में है वो अवे, वो बॉडी हो गया, उसके अवे हो जाएगा. लेकिन अगर मुझे रोप पे दिखाना होता तो क्या होगा? रोप पे हमेशा यू शो द टेंशन फोर्स एज इफ टू स्ट्रेच द रोप. ये थोड़ी तुमने रोप पे टेंशन ऐसे दिखा दिया. रोप पे टेंशन अगर ऐसे दिखा दिया तो रोप तो स्लैक हो जाएगी फिर. तो जब भी हम रोप पे फोर्स दिखाएंगे, इट विल बी ऑलवेज एज इफ टू स्ट्रेच द रोप. लिख लो, पॉइंट नंबर 3, टेंशन फोर्स ऑन द रोप, tension force on the rope is shown in such a way as if to stretch the rope. Tension force on the rope is shown in such a way as if to stretch the rope or the string. हाँ, वॉशरूम. हाँ. तो नॉर्मल रिएक्शन का तुम्हें पता लग चुका है कैसे दिखाना है. mg तुम्हें हमेशा डाउनवर्ड दिखाना है, टेंशन का रोप का ही पता लग चुका है. ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो डायग्राम है ना, इसमें एक्शन रिएक्शन जितने भी तुम्हें फोर्सेस नजर आते हैं वो सारा बनाते हैं. ड्रॉ ऑल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस फॉर द सिस्टम. बनाओ. एक सपोर्ट से रोप हैंग हो रही है मासलेस, उसमें मास कनेक्टेड है, नीचे नीचे अर्थ है, उसको अटैच कर रही है. शो ऑल एक्शन रिएक्शन पेयर. हो गया. अर्थ इसको mg से पुल कर रही है. ठीक है, एक्शन. इस mg का रिएक्शन कहाँ होगा? ऊपर वाला टेंशन. नहीं, फिर वापस वही गलती कर दी. ऊपर वाला टेंशन और mg तो सेम भी डायरेक्शन, अर्थ सेम का. बॉडी पे लग रहा है. वो कैसे हो सकता है एक्शन रिएक्शन? इट विल बी अर्थ अप्लाइंग This सेम. mg is the force applied on the mass by the earth. Mass will apply same force on the earth. ये एक्शन रिएक्शन पेयर है. मास विल ऑल्सो अप्लाई फोर्स ऑन द अर्थ. मास अर्थ को पुल करेगा. भाई एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे कैसे लग सकते हैं? तो टी हालांकि mg के इक्वल है, ऑपोजिट भी है, बट दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर. इस टी का रिएक्शन बताओ मुझे. इट विल बी द ऊपर वाला टी. ऊपर वहां पे, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला टी.
ये है इसका रिएक्शन। But applied from upper. This is applied from नीचे to ऊपर. नहीं से नहीं applied. नहीं, और ऊपर वाले के टी का रिएक्शन ये है, इसका रिएक्शन, ये दोनों एक्शन रिएक्शन, ये दोनों एक्शन रिएक्शन ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये दोनों एक्शन रिएक्शन। तो बीच में अलग से होगा। वो रोप का भी एफवीडी बना दिया ना, फ्री बॉडी डायग्राम। रोप को भी स्ट्रिंग को भी शो कर दिया हमने। अच्छा। इसमें कोई डाउट है जिया, नंदिनी? यहाँ? नहीं नहीं, बॉडी तो ये है यहाँ पे, कहने इसमें तो अवे फ्रॉम द बॉडी है ना। ये रोप भी बॉडी मानी जाएगी ना, रोप को स्ट्रेच कर रहा है, रोप के लिए टेंशन फोर्स एज इफ टू स्ट्रेच द रोप, बॉडी के लिए अवे फ्रॉम द बॉडी। ये ये बॉडी है जहाँ पे ये इसको सस्पेंड किया अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ऊपर मैंने डाउनवर्ड शो किया है। और कोई डाउट है छोटा सा भी पूछ लो, कोई स्लाइटेस्ट डाउट यू कैन आस्क। इफ यू फील 2 + 2 इज नॉट 4, विल डिस्कस। दिव्या? एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लगेगा। हाँ, बिकॉज वो इट्स ए रिजिड बॉडी, जहाँ तुमने इसको सस्पेंड किया, कोई सपोर्ट है ना वो सपोर्ट क्या फील करेगा? सपोज मैंने माना एक रॉड है, उस पर रोप लगा दी, उसको क्या लगेगा? कोई खींच रहा है उसको नीचे ना, तो दैट्स व्हाट टी। जिस चीज से तुम सपोर्ट से किसी चीज को पुल कर रहे हो, मास सस्पेंड कर रहे हो, उसमें फोर्स तो लगेगा ना। किधर लगेगा वो? डाउनवर्ड लगेगा। दिस इज परफेक्ट। ठीक है अभी? हाँ, वो ये रहा। अगर हाँ, तुमने अगर किसी, जैसे ऊपर एक यहाँ पे एक रॉड है, उस रॉड को तुमने यहाँ पे किसी सपोर्ट से लगाया हुआ है, तो यहाँ पे फिर लग सकता है, तो पूरा सिस्टम है, चलता जाएगा वो। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करेंगे, विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, summation of forces equal to mass into acceleration. We'll draw free body diagram before this, FBD इसको बोलते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट को, हर बॉडी को हम सेपरेटली ड्रॉ करके वी शो फोर्सेस ऑन देम। लिखो फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक। पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ ईच बॉडी सेपरेटली, ड्रॉ ईच बॉडी सेपरेटली। पॉइंट नंबर 2, show the forces, show the forces acting on it, show the forces acting on it by the surrounding, show the forces acting on it by the surrounding. And third point is use Newton's second law of motion. लास्ट में हम समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूज कर लेंगे। यूज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टू फाइंड एक्सेलरेशन। जिससे ये वाला सिस्टम था, एक रोप से मास सस्पेंडेड है, मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, सपोर्ट का, रोप का और मास का अलग अलग बना दिया। अब आई कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मुझे ये बताओ, ये जो मास है इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। इट्स नॉट एक्सेलरेटिंग, इट इज एट रेस्ट। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में आई कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो रोप तो मासलेस है। किस पे? नहीं, रोप पे तो इस मास की वजह से लग रहा है ना, मास उसको पुल कर रहा है। अगर रोप का अपना मास होगा तब फोर्स चेंज हो जाएगा फिर। नहीं, रोप का एफबीडी में दोनों टेंशन सेम लिए हैं मैंने। अगर सपोज रोप मासलेस नहीं होती, ये मास होता, तो ये टी और ये टी सेम नहीं आता फिर। ठीक है, मैंने इसलिए लिखवाया था इफ रोप इज मासलेस
and inelastic, tension throughout the rope will be the same. अगर इसका रोप का मास भी होगा तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा इससे कंपैरिजन में, तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन 0, तो टी इक्वल टू एम जी आ गया। तो टेंशन जो है एम जी के इक्वल है, दे आर इक्वल, दे आर ऑपोजिट, बट दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, अगेन द सेम थिंग। अभी हम फ्रिक्शन बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, विल अज्यूम फ्रिक्शन टू बी जीरो, ठीक है। जब तक फ्रिक्शन मेंशन नहीं होगा फ्रिक्शन जीरो है। There's no friction. ड्रॉ एफबीडी, पहला पार्ट तो ये है, एंड फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ये वाली रोप इससे सेपरेट है तो उसमें T1 फोर्स होगा थ्रू आउट, ये रोप इससे सेपरेट है तो उसमें T2 टेंशन फोर्स होगा। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच मास and represent all the forces and hence find acceleration. तो हर ऑब्जेक्ट को इंडिपेंडेंटली ड्रॉ कर लो, सिर्फ मासेस का बनाना है हमें, रोप का रहने देना, ठीक है। शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द सराउंडिंग। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनेगा उस पे सराउंडिंग कितने फोर्स लगा रहे हैं वो दिखाना है हमें। फिर डायग्राम बनाने के बाद क्या निकालना था? हाँ, हो गया। डायग्राम बनाने के बाद क्या निकालना था? एफबीडी बन गया सबका। हम्म, टेंशन निकालो, एक्सेलेरेशन निकालो, इक्वेशन बना के। पहले वाले मास पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 40 kg पे कितने, कौन कौन से फोर्सेस बताओ नंदिनी। mg नीचे लगेगा। नंदिनी बताने दो एक बार, नंदिनी बताओ। तो एक जो T2 वाला है वो राइट साइड में लगेगा, और फिर टी जो रो T2 की ये राइट साइड में हो गया, और फिर जो रोप की दोनों साइड से होती है, नहीं इस पे कौन से फोर्स, इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस पे फोर्स इस पे बताओ। एक mg लगेगा। 40 G डाउनवर्ड लगेगा, और बस, और कुछ और भी है और काव्या, इन दो फोर्स के अलावा कुछ और फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन भी दिखाना है, N1 हो गया, और एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स राइट। नेक्स्ट तुम बताओ शौर्य। सबसे पहले ये तो सबसे सिंपल सा है, इसको तो लगा ही दो, है ना। और मेरा सब कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है। N नॉर्मल रिएक्शन N2 ऊपर की तरफ ले लिया, और हम्म इसमें किधर लगाऊं टेंशन, इधर, कौन सा, 1, बिकॉज वो 1 है, और
ये होगा और कुछ और भी है इस पे? T2 भी तो लगेगा। यस, T2 वुड बी Left टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके सराउंडिंग में ये रो पे ऊपर ग्राउंड सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन, और अर्थ इसको पुल करिए, बिकॉज इससे रोप कनेक्टेड है ना, एंड टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। यस, सेम रोप सेम टेंशन होता है, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। 10 kg में कौन कौन से फोर्सेस हैं जिया? नॉर्मल रिएक्शन एन 10 थ्री जी ले लेते हैं, mg 10g ले लिया, और और T1। T1 ये इधर हाँ जी। एक्शन और रिएक्शन भी यही, और F120। राइट। एक्सेलरेशन को ऐसे शो कर दो। हमने FBD बना लिया, दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अगर फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन में पीछे की तरफ देखा था, बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगता है, बट फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पे। अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं। दिव्या, पहली वाली की क्वेश्चन बताओ, इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी पहले वाले में, 40 kg की? अच्छा, ये T2 हो जाएगा 40A। यस, फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा होगा N1 इक्वल टू 40g, या यू कैन से N1 माइनस 40g इज इक्वल टू 0। इवन इफ वी डोंट कंसिडर वर्टिकल वाले फोर्सेस, नहीं, हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज जैसे मोमेंट फ्रिक्शन आएगा काम में, ये आएगा। बट अभी तो सब बैलेंस नहीं हो जाएंगे। हाँ, तो बैलेंस करेंगे ना। तो नॉर्मल रिएक्शंस पे आ गया 40g, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इसका 40 है, एक्सेलरेशन 0 है वाई डायरेक्शन में, N1 आ गया 400 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया। इसकी सेकंड 20 की इक्वेशन बनाओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स, T1 एंड T2। ये मास किधर जा रहा है, लेफ्ट या राइट? राइट। तो कौन सा फोर्स बड़ा हुआ? T1। राइट वाला। तो T1 माइनस T2 को मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। और वर्टिकल डायरेक्शन में ये मास जंप तो कर नहीं रहा है, ये इट्स नॉट जंपिंग ऑन द टेबल, तो दिस विल बी बैलेंसिंग। द नॉर्मल रिएक्शन आ गया 200 न्यूटन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है काम आएगा द मोमेंट वी स्टार्ट फ्रिक्शन, जरूरी है ये। लास्ट का क्या इक्वेशन बनेगा? 120 माइनस T1 ये इज मास राइट में जा रहा है तो राइट का फोर्स बड़ा होना चाहिए, तो 120 माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 3। वाई डायरेक्शन में हो जाएगा N3 माइनस 10g इज इक्वल टू 0। नॉर्मल रिएक्शन आ गया 100 न्यूटन। इन तीनों इक्वेशन में कोई डाउट है किसी को? सम्मित, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, टेंशन तुम्हारा दूर हो जाएगा। ऐड द 3 इक्वेशंस, टेंशन कट जाएगा। हाँ। Sir, in X direction, only 120 Newton force will be applied, right? हम्म क्योंकि T2 इस तरफ फिर इस तरफ तो कट गया, T1 इस तरफ अगर इस तुम तरफ। पूरे सिस्टम को एक बॉडी मान लोगे तो एक ही फोर्स है। पूरे तीनों मासेस को एक सिंगल सिस्टम मान के भी कर सकते हो, बट टेंशन निकालने के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्सेलेरेशन अगर 12/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, T2 आ जाएगा, सेकेंड वाला T1 आ जाएगा। T2 कितना आ रहा 68.5 न्यूटन। है? ओके। 40 इंटू ए इज 12/7।
480/7। कितना बताया? 68। 0.5। और फिर इसको इसमें सब शुरू कर दो सेकेंड में। तो T1 इज 20 A कितना था? 12/7। T1 is coming out to be 720/7। Yes, 102.8। तो ये हमने इसको सॉल्व किया कंप्लीट एफबीडी बना के। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे। तो फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया ना सभी को? बिकॉज जब सिस्टम कॉम्प्लिकेट होगा तो भी ये काम आएगा सारा। एंड दिस टेक्निक विल वर्क टिल वर्क पावर एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन, सब जगह काम आएगा। इसका शॉर्टकट क्या होता अगर सपोज यही क्वेश्चन तुम एंट्रेंस में कर रहे होते? तो आई वुड सजेस्ट कम पूरे ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट मान लो एक। 40 + 20 + 10, बिकॉज ये सारे इंटरनल फोर्सेस हो गए है ना, आपस में कैंसिल हो गए थे ये इससे। तो एक्सेलरेशन स्ट्रेट अवे आ जाएगा 120/40 + 20 + 70। ठीक है, 12/7 एक्सेलरेशन आ गया। ये तो बेस्ट मेथड था जो हमने किया था, शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब 40 kg मास को 12/7 से एक्सेलरेट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए मेरे को? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये T2 आ जाता। T1 कैसे आता? इस मास पे 120 फोर्स लगा हुआ है, लेकिन इसको एक्सेलरेट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 10 × 12/7। इससे T1 आ जाता। बिकॉज इतना इसको फोर्स चाहिए था एक्सेलरेट करने के लिए, इतना लगा दिया तो एक्स्ट्रा कितना बचा? वो T1 बच जाता। दिस वॉज अ शॉर्टकट, बट स्कूल में तुम्हें पूरे मेथड से करना है। अब डायरेक्शन फोर्सेस देखा कि सारा पूरा एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? Find acceleration and contact force on the two masses. Draw free body diagram, find acceleration and the contact force. क्या हुआ? थर्टी केजी मास क्यों मूव कर रहा है? Why is 30 kg mass accelerating? Because 10 kg मास पे फोर्स लगा रहा है। 30 kg मास इसलिए एक्सेलरेट कर रहा है बिकॉज पीछे वाला मास इसको पुश कर रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स आर से।
और कौन सा फोर्स लगेगा इस पे? नॉर्मल रिएक्शन। और कौन सा फोर्स लगेगा? mg। ये इसका FBD बन गया। बिकॉज फोर्स इन अ बॉडी हैज टू बी शोन बाय द सराउंडिंग। उस बॉडी पे सराउंडिंग से क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, वो तो इसकी बात कर रहे हैं हम पहले। तो इस पे एक अर्थ ने फोर्स लगाया 30 g, ग्राउंड ने लगाया, और इस मास ने लगा दिया, बात खत्म हो गई। अब ये देखो 10 kg फोर्स पे सराउंडिंग कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है? अर्थ इसको पुल कर रही है 10 g से, ग्राउंड इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा दिया 115 न्यूटन, इसने इस पे रिएक्शन लगा एक्शन लगाया था, इसने इसमें सेम इक्वल एंड ऑपोजिट लगा दिया, एंड एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। FBD क्लियर हो गया पूरा। इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर लो, काम खत्म। वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर दो, राइट, और हॉरिजॉन्टल में न्यूटन सेकंड लॉ मोशन लगा दो। हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में N2 आ गया 10 g के बराबर, दस 100 न्यूटन। इस पे N1 आ गया 30 g, 300 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आगे जा रहा है, राइट जा रहा है ना, राइट का फोर्स बड़ा होना मांगता है। राइट माइनस लेफ्ट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये राइट में जा रहा है, राइट का फोर्स बड़ा होना चाहिए, एक ही फोर्स लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गया। आर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये दोनों को ऐड कर दो, एक ही बात है। तो 150 माइनस आर इज इक्वल टू 10a, और आर इज इक्वल टू 30a। आर से आर कट गया, 150 इक्वल टू ए आ गया। फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आर आ जाएगा। 112.5 न्यूटन। हम्म 112.5 हो गया। अब इसी क्वेश्चन में मान लो अगर ये फोर्स 150 इधर ना लग के इधर से लगता, फिर क्या आंसर आएगा? करना। if in the above question if in the above question 150 Newton acts on 30 kg mass, what will, what will be the answer? Acceleration will still be same. हम्म Acceleration will still be same. हाँ, एक्सेलरेशन सेम आएगा। R FBD चेंज हो जाएगा तुम्हारा, है ना? उल्टा हो जाएगा फिर। FBD FBD में यहाँ पे आ जाएगा 150, है ना? बाकी ये वाला हट जाएगा। एक्सेलरेशन वुड बी इन दिस डायरेक्शन। ए इधर हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा, है ना? वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन सेम रहेंगी। तो क्या होगा इसकी इक्वेशन? आर इज इक्वल टू 10a। इस बार ये वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, 150 माइनस आर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सेम आएगा इस बार भी, सिर्फ आर डिफरेंट हो जाएगा। आर कितना आएगा अब? 75/2। ए वुड बी 15/4। सो रिएक्शन फोर्स है चेंज्ड दिस टाइम। इसमें कोई डाउट है जिया, नंदिनी? हो गया? आगे बढ़े, कर लिया? नंदिनी लिख लिया?
इज मासलेस पुली. विल दिस सिस्टम एक्सेलरेट और नॉट? सबसे पहले तो ये बताओ. विल देयर बी सम एक्सेलरेशन और नॉट? नहीं. यस और नो? काव्या. कंफ्यूज हूं मैं. एक मिनट. नीचे दिव्या वन. तुम. दिव्या तुम बताओ. मुझे लग तो रहा है कि होना चाहिए but 2 kg मास, 18 kg मास, ऐसा करते हैं और डिफरेंस बढ़ा देते हैं. 180 कर देता हूँ. अब एक्सेलेट करेगा सिस्टम. अगर यहाँ पे एक चींटी लड़की हो और यहाँ डायनासोर हो, तब भी सिस्टम एक्सेलेट करेगा. दिस सिस्टम वुड एक्सेलरेट बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है. इररेस्पेक्टिव ऑफ द हैंगिंग मास. मैंने बताया ना, यहाँ चींटी लटका दो, यहाँ डायनासोर